director, the actor, also in his capacity of a producer. Yes. Hi everyone. Still sinking in. For me too. Look at the scale, the texture, the brilliance of it. I'll come to all of that, the technicality, the performance, the emotion behind it. But first, the stock question. Why Veer Savarkar? Why not Veer Savarkar? In the 80s, there was a movie made on Gandhiji. Subsequently, there have been movies made on Sardar Patel, two of them. And I myself have done Rang Rasya. I played on Raja Ravi Verma. I did Charles Sobraj, Sarabjit. So why not Savarkar? I think that's the big question. I think movies are a great medium of reaching out to people, even internationally. America has done that very well, even recently with Oppenheimer. They have, but in our country, we are shooting down our own icons, which is unbelievable. So my question to everybody is, why not a movie on Savarkar? Brilliantly put. Not just your transformation in terms of physicality, but the emotional landscape of it. You have lived the character. And here is a story that tells us who the man was. Can you please tell us who the man was not? What he was brave. And what he wasn't was a coward. What is the first word comes to anybody's mind when you talk about Savarkar in today's dispensation? First word. Maafi Veer. He was not a Maafi Veer. There were petitions, bail pleas they were called, and everybody had a right to apply to the court. And if anybody has been to court, they would know how they address the court. And the language is very respectful, though you might not mean it. And there were many, many people who wrote that. If you're sentenced to 50 years of life in Kalapani in a 7x11 cell, you would not just rest there and think of it as a resort for the next 50 years of your life. You will use everything, Sam, Dam, Danda, Bhed, to get out of there. He felt that he had to contribute a lot to India's freedom struggle, culturally, socially, and he wanted to get out. दुश्मन को किए हुए वादे निभाए नहीं जाते. Crisp and sharp, blunt and sharp at the same time. Please tell me why the man, the Veer that he was, his philosophy, his ideology, why he continues to be relevant even in today's day and time. Well, he's very relevant today because he looked at India as a civilization. He looked at India as a cultural unit, as Akhand Bharat, as he used to say. And India's position in the world today has grown not only because of diplomacy, but because we are armed to the teeth. It's only being armed that there can be peace. Otherwise, people will keep bullying you. And I think the India as a country today is armed and it's respected in the world, and there is peace because we are armed. And that was Mr. Savarkar's philosophy, and his philosophy on Hindutva was all encompassing कि देश धर्म से ऊपर होता है और सिंधु नदी से सिंधु सागर तक जो भी यहाँ रहते हैं वो इसको जो भी इसको अपने पूर्वजों की ज़मीन मतलब अपने पितृभू पूर्वजों की ज़मीन मातृभूमि यहाँ की संस्कृति त्यौहार खान पान को अपना मानते हैं वो हिंदू हैं चाहे वो किसी भी धर्म जात या समाज के क्यों ना हो. So I think his idea of uniting India as a society, as a country, was the most unifying,
And I think that's what we are following today. We are trying to unify the country where we put country before religion. This man has internalized a character to another level, to another degree. And with that, I call on the stage the producers of the film. Anand Pandit sir, please join us. Sandeep Singh sir, please come along. Also, Yogesh sir, please join us. Yogesh Ahar. तीनों से पूछना चाहूंगा, ये जो स्केल है, ये जो माउंटिंग है, इसका जो टेक्सचर है, हर एक फ्रेम में एक रिचनेस है सिनेमैटिकली स्पीकिंग. तो एक स्तर जो होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए, बिकॉज आवर अनसंग हीरोज ये डिजर्व करते हैं ऐसा स्केल, ऐसा टेक्सचर, ऐसा स्टोरी टेलिंग. एज अ प्रोड्यूसर आपका क्या कहना है? I think Savarkar needs that, and today's film also needs that. You have to have that experience of that era, and I think Randeep has done brilliant job. आपके सवाल का जवाब मैं देने से पहले कुछ कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो रणदीप, थैंक यू सो मच. Thank you. नहीं, थैंक यू फॉर डायरेक्टिंग दिस फिल्म. एंड आई रिमेंबर आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू माई मैसेज एंड आई जस्ट सॉ कि 15th August 2021 was the first time I messaged Randeep Hooda and Panchali. We would like to have Randeep Hooda as Savarkar. And I remember Panchali said, yes, of course. Do you have the script? बोला नहीं है. And I came to Randeep and I said, script almost ready हो गया है. And he said, ठीक है, फिर तो बहुत अच्छा है. जब script ready हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा आप लोग. और फिर धीरे धीरे रणदीप पूछता गया, स्क्रिप्ट कब आएगा, स्क्रिप्ट कब आएगा, स्क्रिप्ट कब आएगा. और एक दिन मैंने बोला, यार रणदीप, because he started from 16th August, he started sending all the informations about Savarkar ji to us. And then we decided, why don't you write this film? So he said, yes, I can, but I need some people, and that's how Utkarsh came on board. But firstly, I want to thank on this film. When I gave the concept of making this film, everybody told me not to make this film because it will never be made. और फिर बट ऑब्वियस एक इंसान जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे वो है आनंद सर, आनंद पंडित जी, जिनके पास मैं गया और मैं बोला, सर एक फ़िल्म बना रहा हूँ सावरकर और मैं चाहता हूँ कि आप उस फिल्म पे सपोर्ट कर दें. तो ये बोले, ठीक है, कौन कर रहा है? उस समय तक रणदीप ने मुझे हाँ नहीं बोला था. तो मैं बोला, सर रणदीप हुडा कर रहा है. और आनंद सर, थैंक यू सो मच. एंड सेकेंडली, दिस काइंड ऑफ फिल्म नन ऑफ द स्टूडियो कम्स फॉरवर्ड एंड टेक्स इट. तो जी, थैंक यू सो मच for really taking this kind of subject from us, because this is what gives us the strength to make better cinema for Bharat. So उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शारिक का, and especially नीरज, and who's I think has one of the best. इतनी फिल्में करने के बाद मुझे लगता है ये फिल्म का मार्केटिंग और PR प्लान, नीरज, I think you and your team has done a brilliant job. Just looking at the plan, I can say कि marketing is going to be super hit, and so that will help also our film. But thank you, Randeep, once again. I think you have gone through a lot. Thank you, Sandeep. Thank you, Yogesh. योगेश सर, आपसे पूछना चाहूँगा, मतलब आपकी जो जर्नी रही है, मिडवे आपने यहाँ पर शामिल हुए, ये थोड़ा सा अजीब है सुनने में, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, अंदाज क्या है, स्टोरी क्या है, आपसे जानना चाहेंगे. पहले जो प्रोजेक्ट के बारे में रणदीप भाई से डिस्कस हुआ, तो मेरा जो फर्स्ट इंटेंशन था, आई बिलोंग टू ए फ्रीडम फाइटर फैमिली. माय ग्रेट ग्रैंडफादर वाज ए फ्रीडम फाइटर. और ये मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट था कि मेरा मूवी में एज ए डेब्यू प्रोड्यूसर और इस फ्रीडम फाइटर की कहानी के साथ मैं जुड़ रहा हूँ. तो ये एक मेरा ड्रीम डेब्यू है एज ए प्रोड्यूसर. और ये जो स्वतंत्रता सेनानी की कहानी है वो इंस्पिरेशन बनेगी आगे आने वाले यूथ के लिए. हर किसी के पास वो कहानी जानी चाहिए. पहले काफ़ी कहानियाँ गई हैं, भगत सिंह की गई है, चंद्रशेखर आज़ाद की गई है, तो सावरकर जी की कहानी हमारे पेंडिंग थी, जो आज जिस ट्रेलर पे हम बैठे हुए हैं वो कहानी आज प्रेजेंट हो रही है. तो इसमें संदीप जी, आनंद जी, रणदीप भाई, सबका कंट्रीब्यूशन है, सबका थैंक यू वेरी मच. और
सेकंड मैं रणदीप भाई का थैंक यू करना चाह रहा हूँ कि जब हम फर्स्ट टाइम मिले वो एक कनेक्ट क्रिएट हो गया था और पिछले 1.5 ईयर से मैं इसमें प्रोजेक्ट में साथ हूँ। तो मैंने जो इनका हार्ड वर्क, डेडिकेशन, पैशन क्राफ्ट के लिए देखा है, मतलब वो अनबिलीवेबल है, तो उसको कोई मैच नहीं कर सकता। और मेरे को लगता है कि इससे बेटर किरदार, रणदीप हुड्डा से बेटर किरदार, सावरकर का किरदार कोई प्ले नहीं कर सकता। Thank you. थैंक यू रणदीप भाई, Thank you. थैंक यू संदीप जी, Agree. थैंक यू आनंद जी। Completely agree with you. जब हम फ्रेम देखते हैं, जब इनकी आंखें देखते हैं, and I was having this conversation with him, it's like absolute vairagya in his eyes, absolute detachment, and at the same time, this tremendous patriotism for the country, beautifully reflected. What is your take on this, Anand sir? I mean, you could not have found a better actor. He did a complete justice to this fiery role. The role completely deserved him. I would say he's beyond even method actor. तो वो since Savarkar is the film right now, वो सावरकर जी को जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है. तो हमारे साथ में झगड़ा करता है तो भी सावरकर के जैसा ही एग्रेशन उसके साथ में होता है. It's too good, too good. संदीप सर, आपने कहा कि बोल्ड मूव है, फिल्म भी इतनी बोल्ड इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टर, लेकिन प्रोड्यूसर्स को भी उतना ही बोल्ड होना पड़ता है ऐसे किरदारों को बड़े पर्दे पर लाने के लिए. कैन यू गिव मोर सबटेक्स्ट टू दैट स्टोरी? नहीं, मुझे जितने लोगों ने मना किया इस फिल्म के लिए, उतना मुझे हाँ अंदर ही अंदर मेरे आत्मा से निकलती गई कि मैं ये फिल्म, और मैं एक्चुअली 2018 से कोशिश कर रहा था, बट मुझे ये पता था कि कोई भी स्टूडियो या कोई भी फंडर या कोई भी इंसान इस फिल्म को सपोर्ट नहीं करेगा, और एक्टर्स बहुत मुश्किल हैं. और क्योंकि सरबजीत में रणदीप के साथ मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, एंड दैट इज़ आई विल से कि मेरे 15 फिल्मों में से सरबजीत इज़ माई बेस्ट फिल्म. एंड तो मैं मतलब मेरी बस एक ही चीज़ थी कि अगर रणदीप ना बोल देता इस फिल्म को तो शायद ये फिल्म नहीं बन पाती, ये श्योर था. क्योंकि और बाकी के एक्टर्स अपना मार्केटिंग परसेप्शन और अपनी इमेज जो है कि नहीं वो भी नहीं पता मुझे, वो सब ढूंढने लगते हैं, और फिल्म और कैरेक्टर्स नहीं. तो रणदीप अगर मना करता तो ये फिल्म बनती नहीं शायद. One last question before I throw the floor open to the media, for the media. As a writer, as a director, of course, as an actor, as a performer, and now this special feather in your hat, that of a producer. इतने सारे roles निभाते हुए ये कैसे हुआ? My least favorite was being the producer. I think somewhere I read many books about him in Hindi, English, and even got my Marathi friends to, kind of give me proper translations of their films. I had a great co-writer in Utkarsh, and when we wrote Utkarsh Nethani, and when we wrote it kind of visually in our discussions over many nights of fighting. And then once that idea started forming in my head, I was very fortunate to have a great team. The movie is looking great because of Arvind Krishna, who was my cinematographer, and Nilesh Wagh, who's my production designer, Sachin Lovelekar, who did the costumes, and even my CG VFX team at White Apple. They've been great, and sound of Ganesh. So I had every time I came across something, like my first day as a director, or first day as a writer, first day on the edit, or anything, I used to always say, okay, I've never done this before. Please tell me, how is it to be done? So once I learned that very quickly, then I'll be telling them how to do it very soon. And the background. And the background, yeah. And background done by Matthias Duplessis and Sandesh Chandalia. I wanted a very modern sound to the movie. I always wanted this movie to go across to young people who maximum number of percentage of young in India, the young people, and I wanted the real Savarkar ji to come across to them. And that's why I tried to make a movie which was modern, young, relatable, and all-encompassing story on his life. It was a very difficult 2 years for me. I often say that I was in Kala Pani for 2 years, but I'm really happy that Swatantra Veer Savarkar is finally releasing from the jails of perception,
and the real story will get across to people. It's always a nice sight to see the actor, the director, and the producers sitting right alongside with a big broad smile on their faces. Thank you so much. With that, I throw the floor open for the media people to ask their queries and questions. Please go ahead. Microphone, please. Right over there. हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड सबसे पहले तो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेलर है एंड आप सबको बधाई। मेरे दो सवाल है रणदीप जी से। पहला सवाल है, जैसा कि शायद हमने ट्रेलर में देखा, कुछ ऐसी बात की गई थी कि यदि सावरकर जी होते और आर्म्स स्ट्रगल के थ्रू क्या हमें हमारी आज़ादी पहले मिल सकती थी? क्या ये संभव था? ये बिल्कुल संभव था, क्योंकि 1900s के पहले दशक में एक मूवमेंट शुरू हो चुका था। एक तो सीक्रेट सोसाइटीज़ बन चुकी थी। सावरकर जी वीर सावरकर वॉज एट द हेल्म ऑफ इट। लोकमान्य तिलक जी का उन पे हाथ था और वो प्लान कर रहे थे। उन्होंने गन्स इंडिया स्मगल की थी, बॉम्ब मैनुअल्स इंडिया स्मगल किए थे और सबको चिट्ठी लिखी थी कि वो बगावत के लिए तैयार हो जाएं, प्रिंसली स्टेट्स को, फौजियों को। तो 1912 तक उन्होंने ये प्लान किया था कि हम इनको इतने कम तादाद में अंग्रेज़ हैं हमारे देश में कि अगर हमने इनको मारना शुरू किया तो इनको समझ में नहीं आएगा और ये डर के भाग जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली लोकमान्य तिलक died, Veer Savarkar was sent to prison, and that momentum of that movement was lost. And then, of course, the non-violent movement started, which was more conducive to the British because it was not direct confrontation, and it was negotiations that went on for many, many, many years. And ultimately, they left because they lost too much money in the First World War, and they had to leave. But that's the story. We could have got our freedom earlier. मेरा जो दूसरा सवाल है, आई वुड से इट इज़ मोर इन लाइन विद द करंट मॉडर्न सेंसिबिलिटीज़। और जब हम आज विश्व में देखते हैं दो रीजन्स में युद्ध हो रहा है, और जब मैं इसराइल और पैलेस्टीन की बात करूं, एक देयर इज़ अ थियोरी ऑफ इक्विलिब्रियम यूज्ड इन डिफेंस सर्कल्स इन मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जहां पे आपने भी जिक्र किया दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू बी आर्म्ड। लेकिन ऑब्वियसली ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इतने सदियों से चल के आ रही है, और हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान ने एक बयान दिया था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमास के लिए उन्होंने कहा कि आप अहिंसा छोड़ के, वायलेंस छोड़ के आप इंडिया की तरह फॉलो करिए, गांधीवाद बनिए। तो इस चीज़ पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये मेरी पिक्चर से रिलेटेड सवाल नहीं है, फिर भी मैं ये कहूँगा कि जब आप सशस्त्र होंगे तभी आप पीस टेबल पे बैठ सकते हैं, नहीं तो आपको बुली ही किया जाएगा। और जब दोनों साइड इक्वली आर्म्ड होती हैं तब जाके पीस होती है, ना कि एक साइड अहिंसा को फॉलो करे या दूसरी साइड हिंसा को। उससे कभी पीस नहीं होगी, उससे ऑक्यूपेशन होगी। जय हिंद सर, थैंक यू फॉर द ट्रेलर इवेंट। सर मेरा दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि जो आपने जो सावरकर का जो कैरेक्टर किया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप बताना चाहेंगे सर? बहुत लंबा सवाल है दोस्त, इसको बहुत लंबा आंसर है। एक्चुअली सवाल तो आपका छोटा ही था, पर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था कि हर एक इंसान अपने सर्कमस्टांसेस का एक नतीजा होता है, वो कैसे होते हैं। So what I tried to do as an actor was explore the circumstances that made Veer Savarkar who he was, his ideology, his thought process. And what I felt was that he was a man of a giant intellect, a man of resilience, a man of great smartness. And he believed in साम दाम दंड भेद, कुछ भी करके हमें इन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है। और मेरे हिसाब से उनकी कहानी लोगों तक जो नहीं पहुँच पाई वो एक ट्रेजेडी है, और मेरे ख्याल से उनको भी ये बहुत अपने जीवन में भी बहुत लगा कि उनको अपना ड्यू नहीं मिला। Hi, this is Sohail. On the right,
रणदीप यहाँ पर या हाँ बोलो बोलो। कंग्रेचुलेशन टू यू एंड द एंटायर टीम। आप जब भी कोई रोल करते हो एकदम ही लाइक यू कैन यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर यू कैन सी एंड परफेक्शनिस्ट। आप बायोग्राफी मैन जैसे कहलाते हो इंडस्ट्री के। हाउ डज इट रियली फील बिकॉज यू डन सो मेनी रोल्स जहाँ पर आपने बायोग्राफी की है। आप चार्ल्स सोबराज बने हो तो उनकी तरह ही लगते हो। सरबजीत का रोल था तो वहाँ पर आपने स्टारवेशन तक कर दी थी लेकिन उस कैरेक्टर के लिए उस ढलने में। तो is it a very conscious effort also from your side to do these kind of, because ये characters are very powerful and how much do you enjoy also? मेरे ख्याल से ये प्रोड्यूसर्स की गलती है कि मेरे पास घूम फिर के यही प्रोजेक्ट आते हैं। If I can interrupt, he's one of the finest method actor. When you say method actor, आदमी वो character में चला जाता है. जी. So you will till the time of release, you will see him as Savarkar only. So that is the beauty of his body language. So I think मैंने answer किया आपका जवाब, but पर रणदीप आपसे थोड़ा जानना था, how much do you enjoy those process because it's a hard tough thing actually. It is hard in some aspects and it's easier in some aspects. It's harder because people have a reference, a look reference, sometimes voice reference, a lot of pictorial references. So you've got to get that right. But more than that is to get the thought process right, why the man thought and said what he said and what he did, why did he do it. And in terms of fictional characters, it's easier in that sense, but it's more difficult because you don't have a reference. But in both cases, I really do enjoy doing biopics. Nonetheless, it gives me an out-of-body experience if anybody gets that. Yeah, and one more, like महात्मा गांधी जी की assassination को लेकर भी evidences है, तो how has that thing been shown and कितना उसका ख्याल रखा गया है कि देखिए इस पिक्चर में से मैंने उनके ऊपर उनके जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो पब्लिक लाइफ में उनके ऊपर सवाल उठते हैं मैंने उन सब को एड्रेस किया है. Bapu's assassination is also a part of the movie, but that is not what we dwell into. सावरकर जी को उससे बाइज्जत बरी कर दिया गया था, इसलिए नहीं कि सबूत नहीं था, इसलिए कि उनका उससे कोई कनेक्शन बना ही नहीं पाए. और फिर उनके ऊपर कपूर कमीशन भी बैठी थी, उन्होंने भी डाउट दिखाया. And in 2018, the Supreme Court of India upheld the decision that was taken in 1948-49 after Gandhiji's assassination, that he was innocent. Good morning. Hi Randeep. Hi, this is Ravi from ABP News. Hi. दो छोटे छोटे सवाल हैं. एक तो सावरकर जी की जो हिस्ट्री रही है उस पर काफ़ी किताबें लिखी गई हैं, काफ़ी चीज़ें कही गई हैं और बार बार ये कहा जाता है कि वो एक एपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगकर जेल से छूट के वो बाहर आए थे. ऐसी तमाम चीज़ें कही जाती हैं. क्या उस चीज़ को भी आप लोगों ने फिल्म में एड्रेस किया है? बिल्कुल एड्रेस किया है. और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि वो माफ़ी वीर नहीं थे. उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी, उन्होंने कोर्ट में याचिका रखी थी, जो कि हर एक कैदी का, हर एक लीगल सिस्टम का एक हक होता है एक डेमोक्रेसी में, और कॉलोनियल पीरियड में भी था. और उन्होंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने ये लिखी थी. और जैसा मैं कह रहा हूँ कि दुश्मन को किए हुए वादे निभाने वाले नहीं होते, तो उन्होंने साम दाम दंड भेद यूज़ करके वो सब कुछ किया था, और वो पूरा सब कुछ पिक्चर में है. I have addressed it very extensively in the movie. रणदीप, एक छोटा सा सवाल. इस पे एक सेकंड में बोलना चाहूँगा. हम सब ने कोशिश की है इस फिल्म में कि वो माफ़ी वीर नहीं हैं, न थे, और ये एक पार्टी की प्रतिक्रिया होगी पर हमारी नहीं है, और जनता की भी एक परसेप्शन है उनके बारे में. ये तो मैं चाहूँगा मीडिया उस चीज़ में हमें सपोर्ट करे कि स्वतंत्र वीर सावरकर वो वीर थे, माफ़ी नहीं मांगने वाले इंसान थे वो. रणदीप, एक सवाल और था कि फ्रॉम बीइंग एन एक्टर टू अ डायरेक्टर, इस प्रोसेस को आपने कितनी इजीली एक्सेप्ट किया और कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? क्योंकि एक्टर को सिर्फ जो डायरेक्टर बताता है वो आके करना होता है. और मैं ऐसा एक्टर कभी नहीं था जो डायरेक्टर बोले और मैं वो कर दूं. मैं हमेशा से डायरेक्टर के साथ एंगेजमेंट में रहता हूं, और यूजुअली मुझे स्क्रिप्ट बाकी डायरेक्टर से भी ज़्यादा अच्छी तरह से पता होती है, क्योंकि मैं उसे बहुत बारी पढ़ता हूं. तो ऐसा कभी नहीं था कि मैं एक कठपुतली ही था. और फ्रॉम एन एक्टर टू अ डायरेक्टर, इसका बहुत ही
एक सिंपल मैंने एनालॉजी बनाया था कि आई वॉज एन इंडिविजुअल टेनिस प्लेयर, जो कि अपने एकांत में अपना तैयारी करके टेनिस खेलता था। फिर एकदम से मुझे फुटबॉल टीम का कैप्टन बना दिया, और फुटबॉल टीम का कैप्टन बनने के बाद मेरा काम था सबको इंडिविजुअल टेनिस खिलाना। तो वो बहुत एक मुश्किल था, पर जैसा मैंने ये ठान ली थी कि मैं इसको इसके इस प्रोजेक्ट को, इस मूवी को इसके अंजाम तक लेके आऊँगा, और वो मैं ले आया हूँ। उसके लिए मैं क्या क्या गुजरा हूँ, वो स्ट्रगल सावरकर जी की स्ट्रगल के सामने बहुत छोटी है दोस्त।